Hello, good morning to all of you. This is Rajiv here. Welcome in ZD Education. Students, for you all, I am going to start maths classes on my own YouTube channel, ZD Education. I am going to start from zero level, from the basic of the mathematics, because many students, means many where I went in schools, tuitions to teach there, I found that they were unable to understand the basic of the mathematics. They don't know the basic facts of mathematics, basic definitions of the mathematics. They don't know the formulas. Even they don't know the table. Somewhere I found that many students don't have knowledge the all about the counting. I was shocked there how bad it is. What happened with the education of our society? What is the standard of the education in our society? So I thought that I should start maths classes from the basic level, from the zero level, or upon my channel. It's an introduction class about me and my channel. But from today I will teach you about the counting, about the table. I will teach all about the counting. Not only counting, I will teach all about the counting. Means number, their words, their Hindi meaning, and the word which are called also the cardinal number. I will also told you. I will also taught you there the ordinal number, their representations, and also the Roman numbers. Those all things on the same page, on the same time. Then after I will teach you. I will give you some material about table, and also taught you about square and cube also today. It's the class for today. Actually, I'm not here to teach you English language. I'm not here to teach you proper Hindi language. I'm here to teach you maths in bilingual, in both languages, Hindi and English. I will write on whiteboard, on paper in English, but teach you, explain you in Hindi. I hope that you will like me, you'll like my classes. जब तक देखते हैं जब तक अगर बेसिक क्लास चलता है, उसके बाद बेसिक के बाद मैं क्लास 5 to 10 तक, स्टैंडर्ड 5 to 10 तक सेपरेट बैच स्टार्ट करूँगा, सेपरेट वीडियोस पर डे. मतलब क्लास 5 के लिए, क्लास 5 के लिए अलग, क्लास 6 के लिए अलग, क्लास 7 के लिए अलग, ईच क्लासेस के लिए अलग अलग वीडियोस मैं अपलोड करूँगा. मेरा मोटो है कि मैं क्लास 5th to 10th एकदम जीरो से लेके लास्ट तक फाइनल मैथ का प्रिपरेशन करवाऊँ. आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं. वेलकम ऑन जीडी एजुकेशन. जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैं आपको ज़ीरो लेवल से एकदम स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल उसी तरीके से. सबसे पहले मैंने आपके लिए काउंटिंग प्रिपेयर्ड किया है. 1 to कंटिन्यू, 10, 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, as so on till 100. और मैं, जैसे जनरली लोग कहते हैं काउंटिंग लिखो 1 से 100, तो काउंटिंग सिर्फ 1 से 100 तक नहीं होता है, ये कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है टिल इन्फिनिटी, अनंत तक.
it is the symbol of infinity. It is the symbol of infinity. And you must have remember counting at least 1 to 100 in both Hindi and English languages. Means you have to write in English and Hindi also. So I have make a chart for you. Just it's a counting in actually it is in English and it is in Hindi medium. बट क्या होता है, ये रिपीट होता है. जैसे 1 से 10 के बाद 1 से 10 तक जो हमने लिखा, फिर 11 लिखने के लिए 1 1, 12 लिखने के लिए 1 2. तो 1 से 10 तक अगर आपको याद है तो आप कंटिन्यूसली आप 100 तक लिख सकते हो. ये काउंटिंग नंबर हमने लिखा है. उसके बाद इंग्लिश इन वर्ड्स हमने लिखा है. फिर हिंदी शब्दों में हमने लिखा है. जैसे 1 को इंग्लिश में 1 लिखते हैं ONE1, और इसके हिंदी मीनिंग में हम बात करें तो 1 का हिंदी मीनिंग 1 होता है. ऑर्डिनल नंबर जो रिप्रेजेंट करता है इसके पोजीशन को, तो वो फर्स्ट पोजीशन जो 1 है, मीन्स अगर कोई व्यक्ति पहले स्थान पे है तो वो फर्स्ट पोजीशन पे है. ये 1 2 3 जो है कार्डिनल नंबर है. इनको हम कह सकते हैं कार्डिनल नंबर, एंड दिस इज ऑर्डिनल नंबर, और उनको रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट. अब ध्यान देंगे, और इसका रोमन नंबर भी हमने लिखा है. मतलब टोटल इसमें काउंटिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ है. इंग्लिश काउंटिंग, हिंदी काउंटिंग, इनको वर्ड्स में लिखना है, इंग्लिश वर्ड्स में, फिर हिंदी वर्ड्स में, ऑर्डिनल नंबर में, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनको रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं. मतलब टोटल आप कह सकते हैं कि ये काउंटिंग का पैकेज है, होल एंड सोल. आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन का क्या खेल है. जैसे फर्स्ट लिख रहे हैं हम 1 में, ये ST लगा दो. सेकंड लिख रहे हैं तो 2 में ST लगा दो. थर्ड लिखना है 3 में ST लगा दो. फोर्थ लिखना है 4 में TH लगा दो. फिफ्थ लिखना है 5 में TH लगा दो. सिक्स्थ लिखना है सेम. अब ये कंटिन्यू होता जाएगा, है ना, आप देख पा रहे हैं. थोड़ा सा ध्यान देंगे. 10 के बाद 11th, ठीक है, 12 मीन्स 12, 12 का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, और इसका रोमन नंबर ये रहा. 12 के स्पेलिंग में देखिए. अब आप क्या ध्यान देंगे कि यहाँ तो भाई आपने लिखा था सर कि TWELVE 12, तो इसमें भी 12 लिख के TH क्यों नहीं लगाया. नहीं, ये कंडीशन है. आप कभी अगर इंग्लिश में प्लूरल बनाए होंगे तो आपको याद होगा कि भी को F में कन्वर्ट कर दिया जाता था. उसी तरीके से यहाँ भी वही कंडीशन लगा है. 12th VE को FTH कर दिया गया है. 13th 14th एज सो ऑन. ठीक है. आप देखेंगे काउंटिंग में एक और चीज़ है कि अगर हमें 1 से 20 तक याद है, उसके बाद अगर 21 22 याद नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, 30 तक याद हो जाएगा. तो मतलब 20 के बाद सीधे अगर मुझे 30 का भी याद है तो 21 22 23 हम रिपीट कर सकते हैं. मतलब इसको बना सकते हैं. ठीक है, खुद से लिख सकते हैं. मुझे 30 का याद होना चाहिए, फिर 30 का अगर याद है तो 31 32 करके कंटिन्यूसली, और लास्टली 40 तक लिखेंगे. बहुत लोग 40 के स्पेलिंग में FOURTY कर देते हैं, जबकि यहाँ FORTY होता है. और 14 वाले में FOURTEN, ये रहा FOURTEN. यहाँ FOURTEN और यहाँ FORTY. थोड़ा सा इनके प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है. जैसे 13 दिख रहा है ना, यहाँ 13 और यहाँ 30 डिफरेंस है. यही चीज़, यही छोटा छोटा अंतर भी वो लोग, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं. फिर आप यहाँ देखेंगे जैसे 20 तक तो इजीली हमको समझ में आता है. अब 21 का भी इसका जो है ऑर्डिनल नंबर कैसे बनाऊँ, ये यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं. तो यहाँ भी वही फॉर्मूला, वही मेथड. 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th
28th, 29th, 30th, 31st, सो ऑन। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट वही किया। 21st था तो 21 में ST लगा दिया, रिप्रेजेंटेशन का भी वही फंडा है। सेकंड था तो ND लगा दिया, 22 में ND, 23 में RD हो गया। 23rd, 24th, 25th, समझ रहे हैं आप? ऐसे ही कंटिन्यूअसली हम बढ़ते जाएंगे। हाँ, एक और चीज़, थोड़ा सा आप जब इस पर हम बात कर ही रहे हैं तो रोमन नंबर्स को भी देख लें। इनमें जैसे कुछ ऐसे डिजिट्स हैं रोमन में जिनको रिपीट किया जाता है, और कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जिनको रिपीट किया ही नहीं जा सकता। वो मैंने लास्ट में आपको लिखा भी है, और वो आपको हम इनका फ़ोटो या तो आप देख ही रहे हैं, ये तो आपको मिल ही जाएगा। आप इससे इनका नोट्स बना सकते हैं। देखिए, जैसे द लेटर्स IXCM। आई का मतलब कि 1, एक्स का मतलब कि 10, सी का मतलब कि 100 और एम का मतलब कि 1000। ये 4 लेटर्स जो हैं, ये 4 डिजिट जो हैं रोमन में, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं, लेकिन ये रोमन में डिजिट्स कहे जा सकते हैं। सॉरी, डिजिट्स नहीं, नंबर्स कहेंगे। 1 एक नंबर है, 10 एक नंबर है, 100 एक नंबर है, 1000 एक नंबर है। दिस ऑल आर द नंबर्स। तो ये रिपीट होते हैं, और वो भी लिमिट है कि 3 बार से ज़्यादा नहीं। ये रिपीट किए जा सकते हैं थ्राइस, मतलब 3 टाइम्स, इन सक्सेशन, लगातार। मतलब अगर हम 3 लिखना है तो आप देखे होंगे, 3 लिखना है तो आई को 3 टाइम्स रिपीट किया गया। देखिए, 1 लिखना था तो 1, 2 लिखना था तो डबल आई, 3 लिखना था तो ट्रिपल आई। एक और फंडा है यहाँ, एक और रूल है। 4 लिखना है तो मुझे 5 का पता होना चाहिए, और बड़े अंक के पहले अगर कोई छोटा अंक लगाते हैं, कोई छोटा नंबर लगाते हैं, कोई छोटा डिजिट लगाते हैं, जैसे 1 लगाए, 5 के पहले 1 लगा, मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन 5 के बाद अगर 1 है, मतलब कि ऐड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? 5 के पहले 1 लगाए हैं तो 4 हुआ, लेकिन 5 के बाद 1 है तो 6 हुआ। 5 के बाद 2 है तो 5 + 2 7 हुआ। 5 के बाद 3 है, मीन्स 5 + 3 8 हुआ। वैसे ही आगे आए तो हमें पता है 10 का x होता है, तो 9 का क्या होगा, उससे एक सब्ट्रैक्ट कर लेना है, मतलब एक पहले लगा लेना है 1, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो i को हम पहले ऐड कर लेंगे। i अगर बाद में आता है तो वो 11 हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो उस रूल को भी हमने लिख दिया यहाँ पे। इफ द लोअर वैल्यू डिजिट इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द हायर वैल्यू डिजिट, अगर लोअर वैल्यू वाले डिजिट्स को हायर वैल्यू वाले डिजिट्स के पहले, मतलब लेफ्ट साइड लगा लेते हैं, तो इट इज सब्ट्रैक्टेड, वो सब्ट्रैक्ट होता है। मतलब IX अगर कर लिए तो x का वैल्यू 10 है, और I जो है लेफ्ट में है, I इज इन द लेफ्ट, सो सब्ट्रैक्ट करना है। तो IX को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 1, मतलब सीधा 9। वैसे ही लोअर वैल्यू डिजिट को अगर लिखा गया है राइट साइड में, इफ लोअर वैल्यू ऑफ डिजिट इज रिटन टू द राइट ऑफ द हायर वैल्यू, हायर वैल्यू वाले डिजिट्स के राइट साइड में अगर लिखा गया है तो वहाँ हम ऐड करते हैं। जैसे कि ये देखो 12 लिखा है हमने, XII, मतलब कि x के बदले 10 और 2 12। फिर एक फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4th रूल है कि I, X, C और M को रिपीट करते हैं। I, X, C and M can be used as subtractive numerals। ये subtractive numerals है, मतलब I को, X को, C को और M को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है दूसरे नंबर से। वैसे ही V, L, D कैन नेवर बी रिपीटेड, मतलब V को, L को, D को कभी रिपीट नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। तो ये कुछ रूल्स थे, इनको आप ज़रूर लिखेंगे और याद भी करेंगे। और मैं बार बार बताया हूँ कि ये एक बेसिक क्लास है, सबके लिए है। क्लास 5th to 10th के लिए मैं स्पेशली चला रहा हूँ ये अपना चैनल। मैं उन 5 to 10th के सभी बच्चों के लिए मैं बनाऊँगा जो भी वीडियो बनाना होगा।
तो ये बेसिक क्लास है, उन सब के लिए है, चाहे वो क्लास 5 के हों, 6 के हों, 7 के हों, मतलब 10 तक के सभी बच्चों के लिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो सीखना चाहिए, सीखेंगे सीखेंगे समझेंगे। नहीं आना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन नहीं सीखना एक गुनाह है, इसलिए आप उसको सीखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको इन सब का फ़ोटो क्लिक करके भी सेंड कर दूंगा या डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप इनको ज़रूर नोट कर लें। मैं टोटल यहाँ 100 तक लिखा हूँ। 100 के बाद भी मैं कुछ वर्ड्स, कुछ नंबर्स और उनके वर्ड्स को लिखा हूँ, ज़रा ध्यान दें। जैसे 100 के बाद 200 लिखना है तो उसको 200, रोमन में डबल सी, 300, 300, ठीक है, ट्रिपल सी। वैसे ही 400 है तो 500 से 100 कम है। मैंने बताया था कि ये सब्ट्रैक्ट होते हैं, आई, एक्स, सी, ये सब सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, हाँ, ये सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए देखिए 400 है तो 500 का वैल्यू होता है डी। 400 क्या है, तो 500 से 100 कम है ना, इसलिए 100 सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस 100 को हमने पहले लगाया है। अगर 100 ऐड करना होता, मतलब कि हमको 600 लिखना होता, तो 600 का वैल्यू क्या हो जाता बताइए ज़रा, डी सी, 100 बाद में आ जाता। अगर 700 लिखना होता तो डी सी सी, ठीक है। वैसे ही अब मुझे 1000 लिखना था तो 1000 का एम, 2000 का डबल एम, 5000 का, ये एक रूल है, बहुत कम लोग इसको जानते हैं, सबको जानना चाहिए। 5 का होता है वी, और 1000 लिखने के लिए उस पर एक बार लगा दो, एक डैश उस पर दे दो, ये 5000 हो गया, ठीक है। वैसे ही 10,000 का लिखने के लिए 10 और उस पर डैश या बार बोल दो आप, ठीक है। 50,000 तो 50 का एल उस पर 1000 लगा दो, है ना। 100,000, 100,000 कहने का मतलब कि 1 लाख, तो 100 उस पर 1000 के लिए मतलब बार का यूज़ कर लो आप, ठीक है। 500,000 तो 500 का डी और उस पर बार लगा दो। 500,000 ये इंटरनेशनल वैल्यू हम बात कर रहे हैं। अगर इंडियन वैल्यू की बात करें तो 500,000 नहीं, वो 5 लाख के बराबर है। फिर 100,000 मतलब 10 लाख, समझ में आ रहा है, 10 लाख। फिर उसके बाद आप आगे बात करेंगे, ये रोमन नंबर्स फिनिश हो गया। मतलब टोटल मेरे हिसाब से हमने नंबर आपको सब कुछ समझा दिया। इसके बाद भी अगर कुछ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बताएंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। मुझे लगता है ये बेसिक चीज़ है, बहुत बच्चे को ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट है इसका, या फिर अगर थोड़ा बहुत भूल भी रहे हैं तो छोड़ देंगे, चलो देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक फेयर कॉपी बनाओ अच्छे से, और उसमें एकदम बेसिकली एकदम हर एक चीज़, एक एक पॉइंट लिखो, ताकि जब कभी भी इन फ्यूचर आपको कभी भी खुद के लिए नहीं, अगर किसी फ्रेंड के लिए या किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए ज़रूरत पड़े तो आप उसको हेल्प कर सको, ठीक है। फिर अगला स्टेप होता है टेबल। अगर काउंटिंग आपका कंप्लीट है तो टेबल आप लिखो। तो टेबल को जनरली वैसे तो लिखा जाना चाहिए ऐसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बट मैं डायरेक्टली ये इस फॉर्म में लिखा हूँ ताकि स्पेस कम लगे और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आप। लेकिन अगर टेबल याद कर लो, जिस तरीके से भी याद करो, टेबल याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। ये आप देख लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको पढ़ने का यही तरीका है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते हैं, इनके पोजीशन के साथ इनका मल्टीपल करते हैं, है ना। जैसे 2 की बात करें हम, ध्यान देंगे आप, 2 1 जा फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे था इसलिए 2 2 जा, थर्ड पे है इसलिए 2 3 जा, फोर्थ पे है इसलिए 2 4 जा, फिफ्थ पोजीशन पे इसलिए 2 5 जा 10, ओके, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा, मतलब पोजीशन के हिसाब से इनका मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं, वैल्यू आता जाएगा, ठीक है। तो 2 से 13 फर्स्ट
स्टेप में है एंड सेकंड स्टेप में 14 से 21 तक हमने टेबल लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है और याद भी करना है। फिर उसके बाद स्क्वायर का बहुत महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंस है स्क्वायर का। और स्क्वायर लिखने का सही तरीका है 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1। देखो पावर अगर 2 है मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। यही देखो क्यूब हमने लिखा है 1 का क्यूब, मतलब पावर 3 है तो 3 टाइम्स 1 इंटू 1 इंटू 1 3 टाइम्स। समझ में आ रहा है? 2 का पावर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ओके, 3 का पावर 3 है मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने। 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। बहुत से बच्चे इसका क्या कर देते हैं कि 3 3 जा 9, नहीं सॉरी 3 3 3 मतलब ये समझ लेते हैं कि 3 3 6 3 9, सीधा 9 लिख देंगे, जबकि इसको इंटू करना है भाई। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। क्लियर है? ये मेथड है। तो ये स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये कंटिन्यूसली आपको 25 तक इसका स्क्वायर याद करना है, लिखना है और याद करना है। फिर क्यूब की बात करें तो 1 से लेके 15 तक क्यूब कम से कम याद होना चाहिए। ये एकदम बेसिक फंडा है, ठीक है। आज मैं इतना ही करवाऊँगा क्योंकि आज तो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था और मेरा एकदम बेसिक मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक दिन में देना बताना सही नहीं है। कल के लिए मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं आपको डिफिनीशंस वगैरह जो भी है बेसिक डिफिनीशंस सब कुछ मैं लिखवाऊँ एकदम स्टार्टिंग से। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मुझे इनकरेज करें, मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू।